delighted to be with the two doctors, Dr. Sanjay Bhatt and Dr. Shabin Ara. Needless to say, the very constructive relationship between academics and the social sector or the civil society organizations. Most of the work when we do in the field, and we do a lot of documentation of our work, but the exact knowledge creation from our work is done by academic institutions. So we need to be very, it's a very organic relationship between academic institutions and the grassroots organization or activist organization or even the civil society organizations. Because what we do, we need to have when we say that we have done so much work in pandemic, but the exact research on that is mostly done by academic institutions with various, what we call it, epistemological activities. On secondly, also, School of Social Work and CSOs had very old relationship that most of you will find people working in our sector are from School of Social Work. So School of Social Work is also, you can call it academic institutions which produces human resource for the civil society sector. Third issue, which I would like to, when this whole Azadi Ka Mahotsav conversation was going on with Vani membership and with Vani board and among Vani team also, we were thinking that we are doing various activities under that Azadi Mahotsav. That, for example, we know that in the last 75 years, the civil society sector has contributed along with government and private sector in the growth of the country. There is a story of this country which the world should know, that how people have worked towards where we are today as a country. Now we say that India is an emerging power in the world, or we say that we are having a position on the various tables today in the global institutions. But how we have reached there, that story is very important for all of us, and that story is also very important for the world to know. So therefore, we thought that in our 75th year celebration of civil society's contribution, one framework we have done, one activity you can call it, is that we are identifying the civil society leaders and creating database of those we have lost in the last 75 years, but no one remembers them. That is on our website. Secondly, we are also generating the documents, case studies, experiential documents on various thematic areas from the networks, that how they have worked and how they have, like for example, in education, health, that how civil society has worked on various models, various innovations. That story should be there in public domain. Part of that is this academic, looking at civil society from the lens of institutions and the stakeholders who work with us, but they are not part of us, but they can see. So we thought that first let's start with academic institutions, that as academic institutions who has supposed to be a very close relationship with civil society organizations, how they see civil society organizations in their work, their performance, their behavior, how civil society organizations treats this whole activity of knowledge creation uh, with these academic institutions, how we have avenues of internship, because internship is a component. Nowadays, people tell me that most of the students, or even from School of Social Work, are not coming to CSO sector. They are going to private sector and CSR. Why? Where is the gap? Where we are missing the part of the story, that we are not able to motivate the students to be part of the civil society organizations. So we thought that who is the best person to give what you call it, lecture on this topic, where he sees civil society organizations from the lens of a academic institution. And we are lucky to have Professor Sanjay Bhatt, because he has been associated in a very live wire relationship with the sector. He has been part of various conversations, discussions on issues on which we all work. So Professor Sanjay Bhatt, we welcome you, and we are actually recording this session. We will put this session on our YouTube or on our website also, because this is a knowledge from our side we are trying to create, where people can also see your lecture in future, and also we can learn that how we should relate with academic institutions. So welcome, sir. Thank you. Thank you, Harshji. Thank you, Dr. Ara. Friends,
those who are participating in this lecture series, and friends, those who will listen it later on. It is a really matter of great pleasure for me to talk to the members of the civil society and many other stakeholders. आजादी के अमृत महोत्सव में 75 साल होने पे सिविल सोसाइटी सेक्टर का, वॉलंटरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेशनल डेवलपमेंट में immense. We have a very beautiful past. We have also a good present. I'm not putting much big adjective at the present side, but we have a beautiful past and equally beautiful present, and we have very promising future also for the whole sector, because I strongly believe that a strong and vibrant social sector is synchronous to national development. And this is the time when we are talking of the social development. And I think this is the time also to look back, plan ahead, and also to respond some of the questions which sector is facing, which the relationship between academia and social sector is facing. So we, as a most populated democracy in the world, having the diverse nature and many social issues ranging from poverty, hunger, malnutrition, low school enrollment, lack of access to education, religious intolerance, child labor, addiction, inequalities, discrimination. Despite all that, we have been doing very well. Now, I'm not going to narrate the need or significance of civil society, but if we divide these 75 years into the 3 equivalent 25 years each, the first phase, soon after independence to before the emergency, we have a beautiful structure for social welfare. And this structure, right, start from 1950s when Planning Commission came, first plan came, the Central Social Welfare Board established. Many departments have started granting scheme aids to the voluntary organization. The whole idea of commitment to the welfare state, focus along with the reform on the relief and welfare. So the sector grow under the partnership or cooperation with the government very well. So much so, the public cooperation, which later on the Institute of Public Cooperation, which later on turned out to be NIPSED, other institution of social welfare. The civil society has a beautiful role. It has played very well, and every nook and corner, you can find the voluntary organization. And today, this sector is grown up more than 3.9 million NGOs, 82,000 NGOs only in the union territories.
and a large number of workforce, the social service workforce. We have a big, bold numbers in past few years, professionally qualified, what the schools of social work produces, as well as the voluntary social workers. If we add the ASA workers, Anganwadi workers, huge number of. So the first phase till the emergency, focus remained on the welfare. But soon with the slogan of 1971 parliament election, Garibi Hatao, and after 5 years, the Save Democracy, the emergency period. So the next phase of voluntary sector or civil society moved from welfare to the development. Right from the welfare schemes and relief program, we have moved to the democratic values, saving democracy, the well-known Jai Prakash Narayan movement, and the role of civil society in running that movement, restoring back the democratic values. While this period from 72 to 97, or just beginning of the present century, is very important because this has been drastically hectic and very engaging time for the civil society sector. If you look at the word NGO became popular, though this word has been coined long back in 1945, but after the 70, 80 decades, NGO became synonym to, the development and development program. So, this period has witnessed a large number of programs, and this period has also witnessed a law which has largely affected the entire sector. Foreign Contribution Regulation Act, which came during the emergency period. And we hope that it will go away, but it stayed. And it stayed in a very bad format. It has impacted the civil society sector very badly. And recently, you all know, the FCRA and its amendments are creating a huge problem. Now, this period we also recall marked by the capacity building of the civil society sector somewhere in 1983, and prior to that, I cannot forget to mention here about the PRIA, Participatory Research in Asia, led by Dr. Rajesh Tandon, and participatory methodologies in the development field, and acknowledgement of the voluntary sector and people's power, not nationally, internationally. If you look at from 82 to 90 period, so acknowledging internationally. And this was the same period when we have 73rd and 74th Amendment. And these amendments have seen the real life in terms of strengthening PRI, Gram Sabha, the new word micro planning. And these all have been possible because of the hectic engagement of the civil society sector workers, organizations. At the end of this period, we have witnessed few very important landmarks which has changed the entire complexion or direction
of the voluntary sector. I'm talking of 1992 onwards, the new economic policy and globalization. And this new economic policy and globalization, you know, I can tell you many things, but I will briefly tell you that prior to that, literacy program, non-formal education program, water, many of my old NGO sector people will recall India Mark II hand pump. Then Dwakra, women's livelihood program, biogas, rural development got priority, social and community forestry. And 1990 witnessed self-help group, microfinancing. Then at the same time, we have a biggest program of ICDS. And soon after the Rio Convention, the revamping of environmental ministry, environmental protection, water conservation. So suddenly from relief or helping to the disadvantaged group, we have moved towards the developmental scenario and many developmental projects for different section of the society. That doesn't mean that we have stopped thinking about the disadvantaged groups or vulnerable section of the society, but more focus started on the tribal, rural, among the rural, the newer concept of below poverty line, people who have been discriminated. So, the second phase have been a very important nationally and internationally. And soon after that, the last 25 years are very important and landmark changes. अगर आप देखेंगे कि इस तीसरे सत्र में 50 साल के बाद आजादी के सामाजिक क्षेत्र में एक तो डेवलपमेंट से आगे राइट्स की बात हुई, सशक्तिकरण की बात, एम्पावरमेंट की बात, और पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट डिफरेंट डिसएडवांटेज ग्रुप पे दिखने वाले थे उनकी ओर। और पिछला जो 50वां साल था, 80 और 90 के दशक में बहुत सारे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड bureaucrats, technocrats, they came into the NGO sector and they have really contributed a lot in terms of spreading the sector, in terms of making linkages, in terms of bringing many other stakeholders into the past. Same time, Narmada Bachao Andolan. NGO sector started responding to the structural change, talking of the transformation, movement, advocacy, network, rights, and the one big success, right to information, RTI. But at the same time, we have a large number of gongos. HIV/AIDS, everybody knows. Before that, even the adult education program, many gongos developed. And we allowed them to grow. Unfortunately, we have not protested. So if you look at the NACO and SEX, State AIDS Control Society, this was the one. And other very important change has been the recognition of social sector, disadvantaged groups, and the targeted population as the political vote bank. So the politicization of many welfare schemes also started. And unfortunately, neither academics nor the whole sector
could prevent it. Politicization has been on the bigger part. Now, last 10 to 15 years, if you look back, the digitalization and the biggest thing which came into the sector is the CSR. Now, CSR, when it has promised to bring the money into the social sector, but it is becoming very government controlled funding mechanism in which not much smaller NGOs are engaged. And this period has also seen how the World Bank and the other international institution has changed the vocabulary of voluntary sector. So, you know, having the RFP and submitting the project in line of the tender. This period has also seen the Millennium Development Goals and now witnessing the Sustainable Development Goals. So when you record the history of the contribution of voluntary sector into the national development, I think this phase, which started shifting from development to right-based approach or right-based development to empowerment, then techniques like networking, sensitization, they have become very important issue. If we take from the government side, two very important things happened during this period. One is a national policy for voluntary sector, in which WANI has a greater role, and WANI has played a definitely very important role in bringing this national policy. And second important role which WANI as a network organization of voluntary sector in this country, which has given a distinct image and distinct role to the WANI, is the consultation processes before the finalization of the budget. Earlier, it has been done only with the FICCI and SOCHM or industry people, not with the voluntary sector. So social sector or voluntary sector has slowly been recognized, and even economic survey has started mentioning. I mean, if I take you a year back, 1920 economic survey, it says social sector expenditure has grown almost 7.7% of the GDP between 2015 and 2019, 7.7% GDP expenditure. And it says that social sector spending has a profound impact on India's demographic advantage of a large young population in the productive age group. Now, what I am trying to convey you that our history and our contribution with the changing governance mechanism, this has all taken place. But where we lacked and where academia lacked to support the civil society sector is the supply of insufficient data, analysis of the data, giving such researches which can influence realistic policy planning, effectiveness of welfare schemes. You know, if you look, there are certain schemes जो 40 साल से चल रही हैं, 50 साल से चल रही हैं, हमने उनके इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन नहीं किए। पहले तो गवर्नमेंट ही नहीं कराती है, और आप सबको पता है कि गवर्नमेंट की मैकेनिज्म में जो फंड फ्लो है वो आजकल कैसे चलता है। सैंक्शन के कितने दिन बाद पहली ग्रांट और उसके कितने दिन बाद दूसरी ग्रांट,
और प्रोग्राम खत्म होने के कितने महीने बाद अगली ग्रांट, आपको सब पता है। आप सब में से बहुत सारे लोग भुक्तभोगी, बहुत सारे लोग उसका पार्ट नहीं बनना चाहते आज की तारीख में, लेकिन फिर भी इसलिए है कि कुछ मदद, कुछ पैसा जो सरकार ने उस निहित किया है वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं उनके पास इन स्कीम्स का क्या इम्पैक्ट है, हमने बहुत सारी रिसर्चेस नहीं की। और एकेडमिया का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो आई कैन डिस्कस, बट आई विल क्रिटिकली एनालाइज व्हेन relationship between academics and civil society sector, it is not that strong as there is a relationship of industry and academia. So if you take that there are three sector, government, market and civil society, so the relationship between government and market is very strong. The relationship between academic institution and market is very strong. The relationship between market and civil society sector is not strong because the orientation is different. And many people do not want to be the part of CSR processes because philosophically a group of civil society sector is not convinced that how corporates are going to help the disadvantaged groups, or they find the contradiction into the bigger policies and smaller programs. पॉलिसी के लेवल पे बड़ा है और प्रोग्राम के लेवल पे इंटरवेंशन बहुत छोटा है। तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा politicization of schemes has gone up to this extent that we have said farewell to the welfare. So many state governments and even the central government, the welfare department, sometimes I call them, they are symbolically functioning, and they are functioning on the basis of, on the shoulders of voluntary sector. तो अब एक तरफ जहां अचीवमेंट्स जो गवर्नमेंट क्लेम करती है, उनकी स्कीम्स के, उनके रीच, उनकी कवरेज, उनका एक्सपेंडिचर, उनके ऊपर जो रिसर्चेस होनी चाहिए थी एकेडमिक्स में वो मिस हो गया। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो सिविल सोसाइटी सेक्टर ने डेवलप किए, उनमें एकेडमिशियंस कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज कर सकती थी, शायद इसलिए बहुत सारी जगह नहीं हो रहा कि वो या तो स्टेट कंट्रोल्ड हैं या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है यूनिवर्सिटी, तो वहां पे क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से। हमारी तो दिक्कत ये है कि हमारे पास तो सोशल सेक्टर का मैन पावर का डाटा भी नहीं है। हम वर्कर्स का डाटा तो है हमारे पास कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना वर्कर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने वर्कर हैं, उनका एस्टिमेट है, लेकिन सोशल सेक्टर का नहीं है। आप अगर उस पर स्टडीज उठा के देखेंगे तो आपको प्रिया की स्टडी मिलेगी और ऐसी एक दो स्टडी बानी की है और कुछ और लोगों की है। तो अभी जो हमारा पीरियड है जिसमें हम चल रहे हैं और जिसमें न्यू इंडिया की बात हो रही है, वी आर सेइंग न्यू इंडिया, और न्यू इंडिया के लिए इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है सोशल सेक्टर एक्सचेंज का, जो अभी स्वरूप लेगा। अभी उसकी जो जरूरतें हैं या उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, और 1 मिलियन से ज्यादा पैरा सोशल वर्कर्स हैं जिनमें बहुत सारे लोग मिनिमम वेजेस से कम पे काम कर रहे हैं। तो हम इस बात को भी नहीं रोक पाए कि गवर्नमेंट को जहां भी सुटेबल लगता है उसने सैलरी को ऑनरेरियम से कन्वर्ट कर दिया कि वी आर पेइंग ऑनरेरियम टू दीज वर्कर्स। ये केवल सोशल सेक्टर के लिए है,
अब सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की एक बहुत बड़ी स्कीम थी फैमिली काउंसलिंग सेंटर, हमारे इसमें कुछ साथी लोग चला रहे हैं, उसमें काउंसलर की पोजीशन थी। किसी जमाने में 10,000 रुपए, आज के जमाने में भी 20,000 रुपए से कम। पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस्ड आदमी, हम उसे रोक नहीं पाए। एडवोकेसी क्लासरूम में पढ़ाते हैं लेकिन फील्ड में नहीं कर पाए। अब जो ये नए परिवर्तन हैं, उन नए परिवर्तन को, एक तरफ तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े गोल हैं, एसडीजी हैं, स्ट्रक्चर्ड एसडीजी हैं, वेल डिजाइंड हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास विजन 2030 है, जो ये कहती है कि वी विल क्रिएट एन इंडिया वेयर पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी वुड बी ए मैटर ऑफ पास्ट। अब कितने दिन रह गए हैं, 6-7 साल रह गए ना विजन 2030 में। तो एक आध कंपोनेंट तो उसका चल रहा है, लगता है कि शायद हम अचीव कर लेंगे, जैसे इंडिया वुड बी ए मॉडर्न, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, हाई ग्रोथ, इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंट सोसाइटी। वो तो लगता है कि शायद इस डिजिटलाइजेशन के टाइम में, लेकिन उसमें भी डिजिटल डिवाइड इतना है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी या 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बनना चाहिए। लेकिन अगर उसमें सोशल सेक्टर को हम भूल जाएंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। क्योंकि वॉलंटरी सेक्टर विच इज सिनोनिम टू द पीपल सेक्टर, वो कई बार ऐसा दिख रहा है कि इट हैज बीन सिस्टमेटिकली बीइंग मार्जिनलाइज्ड बाय द मार्केट, and many places it has been supported by the government. तो अब फॉरेन फंडिंग के लेके आपको सब पता है, उस पर मैं क्या ज्यादा बोलूं। छोटा सा काम हो सकता था कि जैसे आप इंडस्ट्री के लिए आपके पास फेमा है, उसी में 3-4 प्रोविजन लगा सकते थे, एफसीआरए की जरूरत ही नहीं थी। अगर उनको इन्वेस्टमेंट लाके इन्वेस्ट करने की फ्रीडम थी तो वॉलंटरी सेक्टर को भी दे सकते थे। लेकिन उसके लिए बहुत सारे स्ट्रिंजेंट रूल्स और रेगुलेशन हमने बनाए, और कई बार ऐसे भी लगता है कि पता नहीं, हमें तो ऐसे भी शक होने लगता है कि गवर्नमेंट चाहती भी है फॉरेन कंट्रीब्यूशन या नहीं चाहती। अब सीएसआर में भी जिस तरह से शेड्यूल 7 और उसके बाद जिस तरह से पाबंदियां हैं और जिस तरह से गवर्निंग रूल्स बन रहे हैं, तो उसमें भी सोशल सेक्टर को, सोशल सेक्टर, सिविल सोसाइटी सेक्टर के बारे में एक अच्छी सी कहानी ये थी कि सिविल सोसाइटी सेक्टर हिरन की तरह है जो छलांगे लेता रहता है, नए नए काम करता रहता है, नई नई जगह जाता रहता है, और सरकार के बारे में बोलते थे कि हाथी की तरह है, एक रास्ते में चलता है, सीधे चलता है। अब हम मान लें कि अगर वो बदल भी गया है किसी तरह से, तो जो हमारी स्पेसिफिकली डिजाइन प्रोग्राम्स हैं, उन पब्लिक सर्विस को का जो प्राइवेटाइजेशन है और जो एक नया फॉर्मेट आया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यूजर्स पे मॉडल, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या सिविल सोसाइटी के जो बेसिक वैल्यू सिस्टम्स हैं उनको मैच करते हैं। अब इस पे रिसर्चेस होनी चाहिए थी जो एकेडमिया ने नहीं की, जो लिंकेजेस बनने चाहिए थे वो लिंकेजेस नहीं बने, और मुझे लगता है कि वो लिंकेजेस इसलिए भी बहुत जरूरी थे कि अब प्रोग्राम का डायमेंशन किसी भी क्षेत्र में आप ले लें, एजुकेशन में, HIV एड्स में, बढ़ता ही चला जा रहा है। कोरोना में, और कोरोना के बाद तो हमने ये प्रूव किया कि कोरोना की लड़ाई में तो सरकार ने भी माना कि इट हैज बीन voluntary sector, it has been people's power which has equally given power to the government to fight with the corona, and we have successfully done, for which government deserves full marks, and for which government also give full marks to the voluntary sector. Now this is the area where we have to document more and more. Rural industrialization, SHG,
climate change, safe drinking water, healthy India, food production. These are the area जहां पे हमको जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्चेस करें और ज्यादा से ज्यादा उनको इक्वेट करें। एक फिक्की की रिपोर्ट है इनविजन इंडिया 2030। उसका स्लोगन है इनोवेटिव इंडिया विद शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, साझा समृद्धि के साथ अभिनव भारत। जरूर पढ़िएगा आप किस तरह का रिफॉर्म और किस तरह के कार्यक्रम की बात करते हैं। तो जब हमारा सरकारी तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है इक्वल सोसाइटी का, और वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जब तक सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जब तक सोशल सेक्टर का एंगेजमेंट नहीं होता। मैं आपको दो चीजें बताऊं। कुछ एफर्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं पास्ट में। राजेश टंडन जी के साथ मैंने कुछ दिनों काम किया। उस समय में एक एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया करके ऑर्गेनाइजेशन था, उसका ट्रेजरर था। प्रोफेसर आर सिंह को भी याद करूंगा इस मौके पे, वो प्रेसिडेंट थे। और प्रिया के साथ मिलके हम लोगों ने पार्टिसिपेटरी रिसर्च को क्यूरिकुलम का हिस्सा कैसे बनाया जाए और पार्टिसिपेटरी मेथोडोलॉजीज के थ्रू पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, उसके लिए पूरे देश में वर्कशॉप्स की। 1-1.5 साल लंबा प्रोजेक्ट था, लेकिन बहुत सारे टीचर्स को सेंसिटाइज किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंगेज किया, काफी नया लिटरेचर उसमें क्रिएट हुआ, नॉलेज क्रिएशन हुआ। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट। आपको पता है यूनिवर्सिटी के 3 फंक्शन होते हैं, एक एकेडमिक, दूसरा रिसर्च और तीसरा एक्सटेंशन। तो नॉलेज क्रिएशन में शायद हम जितना नॉलेज क्रिएट कर सकते थे उतनी नहीं की। और नॉलेज क्रिएशन का जो मेन टूल है वो है रिसर्च। तो हमने रिसर्चेस एरियाज में तो की, लेकिन एनजीओ सेक्टर पे हमने कितनी रिसर्चेस की? हमने कितनी रिसर्चेस इस बात पे की कि स्मॉल एनजीओज क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? हमारे पास ये तो डाटा है कि वो किसी हमारे पुराने प्रधानमंत्री ने कहा था, शायद राजीव गांधी ने, कि जब 100 रुपया चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो नीचे जाते जाते 10 रुपया रह जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये देखा कि छोटे एनजीओ, जो स्मॉल एनजीओ हैं, जो कि सबसे ज्यादा है इस देश में, 70-75% से ज्यादा है, 2/3 से ज्यादा एनजीओ, और बहुत बड़ी फोर्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कम से कम 80% जो वर्कफोर्स है उसके इक्वल है सोशल सेक्टर वर्कफोर्स। लेकिन हम उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। ना यूनिवर्सिटीज ने कभी आवाज उठाई, ना हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स पे या आशा वर्कर्स पे उनके काम को लेके, उनकी परफॉर्मेंस को लेके बढ़िया सी रिसर्चेस की, ना हमने उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो जो रिस्पॉन्सिव सोशल सेक्टर है, जो बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुका है और जिसमें सामर्थ्य है प्रोड्यूस करने की, बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, उस पर हम कहीं ना कहीं लैग कर गए। अब आता है यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन की बात। तो अभी 5-10 साल पहले तक यूनिवर्सिटी में जो एक्सटेंशन काम था वो सिंबॉलिक था। मुझे 47 साल हो गए यूनिवर्सिटी सिस्टम में, और ये मेरी 5वीं या 6वीं यूनिवर्सिटी है जहां मैं काम कर रहा हूँ। मैंने इसको बहुत क्लोज देखा है। अभी पिछले कुछ सालों के एफर्ट छोड़ दें तो हमारे पास ऐसा कोई नेशनल प्रोग्राम भी नहीं था एक्सटेंशन का जो विश्वविद्यालयों के लिए हो। और एक बार मैं फिर डॉक्टर राजेश टंडन का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि एक यूजीसी के प्लान में, 12th प्लान में एक स्कीम पड़ी थी कम्युनिटी एंगेजमेंट की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उन्होंने इस स्कीम को निकाल के पूरे नेशनल फ्रेमवर्क पे उसको खड़ा कर दिया, और उन्होंने जो रिसर्चेस की, उन रिसर्चेस के थ्रू आज की तारीख में यूनिवर्सिटी कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को
अपने पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाना चाहती है और ये देखना चाहती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लेटेस्ट आई है उसमें किस तरह से विद्यार्थियों को कम्युनिटीज के साथ जोड़ा जा सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा सेक्टर है उसके पास एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें यूनिवर्सिटी और सेक्टर का डायरेक्ट एंगेजमेंट हो सकता है। अब अगर मैं बहुत क्विकली, मुझे पता नहीं है कि कितना समय अपने पास है, लेकिन बहुत क्विकली अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप जो एकेडमिया और सिविल सोसाइटी सेक्टर की है उसको रीडू करने की बात है, उसको हमें रिविजिट करना चाहिए। दिस रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड नहीं है और बहुत उसको हम प्रोडक्टिव नजरिए से नहीं देख रहे हैं। जैसे अगर इंटर्न सिविल सोसाइटी सेक्टर में आते हैं तो वो एक तरह से फ्री लेबर है, और जो अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो सिविल सोसाइटी सेक्टर उतना ज्यादा यूनिवर्सिटीज के पास जाता नहीं है अपने काम के को लेके कि इस काम का कोई सोशल ऑडिट होना चाहिए या इस काम के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी होनी चाहिए या इस पर बहस होनी चाहिए। मुझे एक हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का और उसके साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं उसके कुछ आपके साथ अनुभव साझा करता, ज्यादा समय होता। सीकोई डिकॉन, मेरे मित्र थे शरद जोशी जो वानी के साथ भी जुड़े रहे और वानी के ट्रेजरर थे, और हम लोगों ने वानी के साथ मिलके सीको डिकॉन और कुछ यूनिवर्सिटीज को साथ में लेके इस तरह के प्रोसेसेस किए और जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर स्तर पे जब दोनों का मकसद एक है तो क्यों ये पार्टनरशिप एकेडमिया और सिविल सोसाइटी की एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं आ सकती। और मुझे लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं वानी को एक लीड रोल लेना चाहिए कि पूरे देश में फैले हुए एनजीओ और पूरे देश में फैली हुई 1039 यूनिवर्सिटीज का जाल और लगभग 40,000 कॉलेजेस का जो जाल है वो किस तरह से सिविल सोसाइटी सेक्टर का कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, हाउ दे कैन वर्क सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट विद वन अनदर। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो मॉडल बदल रहा है उस बदलते हुए मॉडल में ये दो इंस्टीट्यूशन जो हैं इनमें बहुत बड़ी होप है। तो मैं जब इसे एकेडमिक परिप्रेक्ष्य में, एकेडमिक लेंस से देखता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो जुड़ाव है सिविल सोसाइटी सेक्टर के साथ, हम दो अपने अपने आइवरी टावर्स में बैठे हुए हैं। हालांकि हमारी रिलेशनशिप भी है, एक दूसरे के लिए वर्क पावर, मैन पावर सप्लाई करता है, लेकिन दूसरा उनकी नीड्स के बेस्ड पे कितने सिलेबस बनाता है, कितने सिलेबस अपडेट होते हैं जिसमें सिविल सोसाइटी सेक्टर के लीडर्स या जो वर्कर्स हैं उनकी उनकी राय हासिल हो। तो कई बार क्या होता है कि जो जब सिविल सोसाइटी सेक्टर में हमारा स्टूडेंट पास होके जाता है तो बोलते हैं हमें जो काम आपसे कराना है वो तो आपको आता ही नहीं है, हम तो आपको ABCD से सिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे ट्रिकी इश्यूज हैं जिन पे खुल के चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्वरूप बदल गया है। हम कहीं चैरिटी और वेलफेयर के मॉडल से आज लिबरेशन और एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हम राइट बेस्ड की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें दोनों ग्रुप को अपनी अपनी कमजोरियों को जो हम छुपाए बैठे हैं वो एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए और अपनी अपनी स्ट्रेंथ को भी साझा करना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है कि वानी एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है, एक लीड रोल प्ले कर सकती है इस तरह के एक नए वातावरण को और एक नई सोच को लेके आने में। तो अब देखिए, अब ये जो आने वाला वक्त है इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। एक, ये सोसाइटी में डेमोग्राफिक चेंज होने वाला है, हो रहा है, हो चुका भी है और हो भी रहा है। यानी हम दुनिया के सबसे बड़े यंग पॉपुलेशन के मालिक बनने वाले हैं। तो क्या हमारे प्रोग्राम्स और हमारे BMGs उनकी तरफ मोड़ने की जरूरत है? और अगर इसकी जरूरत है तो दूसरा जो बड़ा डिटर्मिनेंट है, जो बड़ा पावरफुल फैक्टर है, वो है टेक्नोलॉजी। तो क्या सिविल सोसाइटी सेक्टर टेक्नोलॉजी के प्रति
उतना ही जवाबदेह है, उतना ही उसका वेलकम करेगा। अब देखिए, मार्केट में बहुत तरह के एप्स हैं, लेकिन वॉलेंट्री सेक्टर का कोई ऐप नहीं है। आज मैं अगर ढूंढना चाहूं कि पूरे इंडिया में फिशरी डेवलपमेंट के लिए कितने एनजीओ काम कर रहे हैं, तो क्या एक ऐसे ऐप की जरूरत नहीं है? अगर मैं देखना चाहूं कि दिल्ली में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो विमेन्स वायलेंस अगेंस्ट विमेन पे काम कर रही हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा ऐप है जहां हम उसे डाउनलोड करें और सारी इंफॉर्मेशन आ जाए? तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी को सोशल सेक्टर में प्रमोट करने की और टाई अप करने की जरूरत है, जिसमें एकेडमिक्स एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनका ह्यूमन रिलेशन से या उनका सोशल सेक्टर से केवल उसी तरह का रिश्ता है जो जो कहीं सिंबॉलिकली या किसी, जैसे कभी हम अपने यहाँ पर्व मनाते हैं ना, त्योहार मनाते हैं, तो उस दिन पूड़ी हलवा बनता है, उसी तरह का रिश्ता है बस, कि एक दिन पूड़ी हलवा बन जाएगा, कहीं पे सोशल सेक्टर में जाके टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट एक छोटा सा प्रोजेक्ट कराएंगे। लेकिन हमें लगता है कि शायद यहाँ पे अमूल चूक परिवर्तन की जरूरत है। क्यों नहीं हमारे पास उतने एप्स हैं, क्यों नहीं हमारे पास उतनी साइट्स हैं जहां पे हम एक स्ट्रोक में ये पता कर लें कि चाइल्ड लेबर के ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, और कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। वो हम क्यों नहीं कर सकते? वो जो जो इम्पैक्ट स्टडीज बहुत सारे एनजीओ कराते हैं, लेकिन वो एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि हम इम्पैक्ट स्टडीज या जो नीड असेसमेंट स्टडीज हैं वो हम अपने रेगुलर बेसिस में कुछ इस तरह के कोलैबोरेशन करें जो होती रहे। अगर हम चाइल्ड लाइन दे सकते हैं, सिविल सोसाइटी सेक्टर ने चाइल्ड लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो सरकार को दिया, टाटा इंस्टीट्यूट का एक प्रोजेक्ट था, उसी तरह से टाटा इंस्टीट्यूट के और भी प्रोजेक्ट है। चाइल्ड गाइडेंस सेंटर का जो प्रोजेक्ट है वो, स्कूल सोशल वर्क का जो प्रोजेक्ट है वो सोशल वर्क के स्कूल्स ने दिया। अब आज उसी स्कूल सोशल वर्क की बात हो रही है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में विद्यालय संकुल बनेंगे, स्कूल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और उस स्कूल कॉम्प्लेक्स में उन विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ट्रेंड सोशल वर्कर होगा। इसका मानी यह है कि हम बहुत सारी जगह से डिस्कनेक्टेड हैं अभी, जबकि हम उनमें कनेक्ट करके उनमें नई जान डाल सकते हैं। अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमको बहुत सारा ये अवसर प्रदान करती है, तो कैसे ये नई रिलेशनशिप को डेवलप किया जाए, या जो हमारी पुरानी रिलेशनशिप है उसको नए फॉर्मेट में और नई जरूरतों में परोसा जाए, वो देखने की जरूरत है। देखिए, आने वाली पॉपुलेशन, मैंने डेमोग्राफी और टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, तो ये टेक सेवी पॉपुलेशन है। तो टेक सेवी पॉपुलेशन को कैसे सिविल सोसाइटी सेक्टर के साथ जोड़ा जाए, और कितने तरह के हम एप्स डेवलप कर सकते हैं, कितने तरह के इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म ले सकते हैं। और मैंने तो टंडन साहब के साथ पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन इज ए पावर, नॉलेज इज ए पावर। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और वो हमारे पास कैसे आ सकती है। तो वॉलंटरी सेक्टर इस बात को रिकॉग्नाइज तो करता है, लेकिन उसको नए स्वरूप में लाने के लिए मुझे लगता है कि जो एकेडमिया अभी बाहर से एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप में जी रहा है, उसको हमने रियलिस्टिक रिलेशनशिप में उसको लाना चाहिए। तो टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन तो एक बहुत बड़ा एरिया आने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बनना है, तो उसमें भी हम किसी तरह से इसको कनेक्ट कर सकें। मैं नाप्सवी करके एक संस्था है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया, उसका इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और अभी एडवाइजर हूँ। तो मैं उसकी तरफ से ये प्रपोज करता हूँ कि नाप्सवी और वानी अगर इस तरह का कोई कोलैबोरेशन करे तो मैं उसमें अपनी भूमिका आपके साथ कमिट करता हूँ। अभी मुझे लगता है कि मेरा समय शायद समाप्त हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि आपके कुछ प्रश्न हों तो मैं उनके उत्तर दूं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ, और सिविल सोसाइटी के उन तमाम वर्कर्स को जिन्होंने इस 75 साल की अभूतपूर्व यात्रा को
एक यादगार यात्रा बनाया है। और उस यादगार यात्रा का जब भी डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, इतिहास तो लिखा जा चुका है, लेकिन बस उसे जब भी लिपिबद्ध किया जाएगा तो उनके उनके रोल को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो उनको मेरा प्रणाम। और आप सबने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वानी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस लेक्चर सीरीज के लिए, उसके भी प्रथम लेक्चर के लिए मुझे चुना। और मैंने बहुत सारी चीजें केवल टच की हैं, समय के अभाव में उनको मैं विस्तार पूर्वक नहीं बता पाया। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली जो लेक्चर सीरीज में और जो वक्ता होंगे उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसमें मैं वानी को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसके जो सीईओ हैं हर्ष जेटली साहब, उन्होंने ये कॉन्सेप्चुलाइज किया, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है। और ये पहल पूरे सेक्टर को एडवर्सरी रोल के बजाय एडवाइजरी रोल में ले जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा ऐसा लोगों के दिमाग में और सरकारों के दिमाग में बना हुआ है कि सिविल सोसाइटी सेक्टर के मायने हल्लाबाजी है। तो हमारा रोल, हमने आपको बताया कि कई जगह हमने बहुत ही रचनात्मक भूमिका अदा की है, उस भूमिका को भी हाईलाइट करने की जरूरत है और उसमें वानी की एक अहम भूमिका हो सकती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, और जो भी आपके प्रश्न होंगे यथा योग्य मैं उत्तर दूंगा। थैंक यू सो मच प्रोफेसर, बहुत ही मोटिवेशनल था और आपने बहुत सेक्टर्स को आप आईना भी दिखाया है। तो एवरीबडी, हम जितना चाहे ये थोड़ा सर्कुलेट करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे ये लेक्चर, सो दैट पीपल रियलाइज व्हाट दे आर मिसिंग, व्हाट दे नीड टू डू। बहुत काम करना बाकी है। तो अब मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो सर से यही मौका है, थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। तो जिनको भी पूछना हो प्लीज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस। Sudhanshu wants to speak. Sudhanshu ji. Ji, thank you very much. So thank you, Mr. Jetli, for organizing this lecture series, and thank you, Professor Bhatt, for this very, very informative lecture. I thoroughly enjoyed. One thing, if you could reflect more on this, I think that the civil society movement also started changing its characteristics over a period of time, which was very indigenous a few decades ago, and with the arrival of Western organizations, INGOs strengthening their footprints in India, it has started. It started changing, no? And from being indigenous, it's somehow reflects more a bit of coloniality. We try emulating Western organizations, and because of which government is also becoming reactive, which was seen more acutely when these FCRA rules were amended. Perhaps for the betterment of this, the way civil society organizations function, but that has impacted very, very adversely. So how would you like to reflect on the Western influence over our Indian NGOs? Over. देखिए, किसी भी संस्था के विकास में विभिन्न पड़ावों पे विभिन्न तरह के उस पर प्रभाव पड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा सा वेस्टर्न प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, क्योंकि जो बहुत सारी फोर्सेस थी, वो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, उन्होंने भी इस इंस्टीट्यूशन को निगेटिव डायरेक्शन में, या आप कहें कि वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ले जाने में बड़ी मदद की है। अब सवाल ये है कि बदलाव कितना और कितना होना चाहिए। बदलाव जरूर होना चाहिए स्ट्रक्चर में, लेकिन मूल्यों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। बेसिक वैल्यूज जो सेक्टर की हैं, जिसके लिए स्टैंड करता है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वो कोऑपरेटिव वैल्यूज, वो पार्टनरशिप की वैल्यूज, उनमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हमें एक बड़ी उदाहरण, आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो फ्रेमवर्क है जिससे हम गवर्न होते हैं, तो वॉलंटरी सेक्टर को ये भी कहना चाहिए कि अब चूंकि हमारा पूरा परिदृश्य बदल गया है, तो ये जो लॉ है जिससे हम गवर्न होते हैं वो भी बदलना चाहिए।
मैंने कुछ सालों पहले एक रिसर्च की दिल्ली में 20 एनजीओज की। मैंने ये जानने की कोशिश की कि जो डे टू डे ऑपरेशन है वो किस लॉ के तहत होते हैं। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो बहुत पुराना है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें बदलाव की तो बात हमने कभी की नहीं, जो कि की जानी चाहिए। अब आप देखिए कि नॉन प्रॉफिट कंपनी कंपनीज एक्ट में बन सकती है, तो फेमा में हम पैसे क्यों नहीं ले सकते? इस बात पे एकेडमिया को सवाल उठाना चाहिए था, लिखना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। उसी तरह से जब आप देखें कि जो हमारा एनजीओ का डे टू डे ऑपरेशन है वो शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के रूल्स के हिसाब से चलता है। हमारी जरूरतें तो अलग हैं, तो उस एक्ट से हम नहीं चल सकते, लेकिन हम चल रहे हैं, हमने कभी उस पर आवाज नहीं उठाई, और उसी का फायदा कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ने लिया। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो लेजिस्लेशन है, मुझे लगता है कि अगर हम केवल एफसीआरए की बात करते रहेंगे तो शायद वो हमारी एक तरफा रहेगी, लेकिन अगर हम इस पूरे फ्रेमवर्क को बदलने की बात करें नए माहौल में, तो वो ठीक रहेगा। और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो हुआ है और हम उससे इन्फ्लुएंस भी हुए हैं, और बहुत सारे जो 5 स्टार एनजीओ का जो बात चालू हुई कि 5 स्टार एनजीओ है, और उसी ने कुछ लोगों को इस हद तक ले जाके कह दिया कि सारे एनजीओ करप्ट हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। फिर करप्शन की भाषा क्या है? करप्शन के खिलाफ तो हमने 2 आंदोलन किए हैं, जेपी का भी आंदोलन किया और अन्ना के आंदोलन में भी साथ थे। तो ये जो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, इनको एड्रेस करने की मेरे हिसाब से जरूरत है। जैसे हमको नए लॉ, नए, अब नेशनल पॉलिसी फॉर वॉलंटरी सेक्टर बड़ी मुश्किल से आई थी। एक प्लानिंग कमीशन में एक वॉलंटरी एक्शन सेल भी बना था, लेकिन आते आते धीरे धीरे वो मतलब नगण्य हो गया। तो हम क्यों नहीं बात करते कि उसको रीएक्टिवेट किया जाना चाहिए? उसके लिए हमारी कोई एडवोकेसी नहीं है, उसके लिए हमारे पास बड़ा प्लान नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ बिंदु हैं जो हम इंडिजीनियस तो रहेंगे अपने कैरेक्टर में, लेकिन वो हम अपने मूल्यों के साथ रह सकते हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे मूल्यों के साथ समझौता हो रहा है, जैसे आप देखिए सीएसआर में बहुत सारी कंपनियां बजाय पूरे सेक्टर को अपने साथ लेके चलने के लिए वो आपके सेक्टर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, और बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस ने अपना फाउंडेशन बनाना शुरू कर दिया है उसी लॉ में, जिस लॉ में हमने एनजीओज बनाए थे। तो मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहा है वो बेसिक है, उस पर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और पहले कुछ एफर्ट हुए हैं अकाउंटेबिलिटी को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके। मुझे लगता है कि उनको फिर से रिविजिट करके उन पे हाईलाइट करने की जरूरत है, तभी हम इस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम कर पाएंगे, या जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न का उससे हम बच पाएंगे। अब हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं है, एनजीओ आप किसी भी मतलब एक लॉ ऐसा है जिसमें आप किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लें, ऐसा कहीं संभव है? मतलब उसमें आप अस्पताल भी चला लें, उसमें आप स्कूल भी चला लें, उसमें आप जो है ना वो क्या क्या आपको सब मालूम है, एम्बुलेंस भी उसी में चला लें, उसी में दान भी चला लें। फिर अब जैसे फंडिंग का सवाल है, तो हमें लगता है कि किसी स्टेज पे आके हमें डोमेस्टिक फंडिंग को भी एड्रेस करना होगा, क्योंकि अगर फॉरेन फंडिंग बंद हो रही है तो डोमेस्टिक फंडिंग आनी चाहिए, और वो किस तरह से आएगी उसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन 1-2 एनजीओ के अलावा इस स्पेशल क्षेत्र में कोई एनजीओ ही सक्रिय नहीं है, सब लोग अपनी अपनी फंडिंग कलेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा नेशनल लेवल का एक कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसपे हम फंडिंग को भी एड्रेस कर सकें। जी सर, 2 और हैंड्स रेज्ड हैं, जी, मिस जसवंत कौर और हेमल कामत जी, दोनों हमारे बोर्ड मेंबर्स। आई रिक्वेस्ट जसवंत कौर जी पहले, फिर उसके बाद हेमल कौर जी पूछ लें सवाल। थैंक यू। Thank you so much, Sanjay sir. It was such an enriching session that I have heard from you. In fact, ये जो curriculum बना, जो point आपने raise किया है, in fact, in one of the earlier meetings with Vani, I also raised the same question.
कि वॉलंटरी सेक्टर का जो करिकुलम जो बच्चों को पढ़ाया जाता है सोशल सेक्टर के स्कूल्स के अंदर, वो करिकुलम सारा इनफैक्ट बहुत ही आउटडेटेड करिकुलम है। उसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि इंडियन वॉलंटरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है। कुछ छुटपुट जो चीजें मेंशन की जाती हैं, चिपको मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया गया है, कुछ रेफर किया गया है। इनफैक्ट इग्नू का अगर करिकुलम स्टडी करें, उसके अंदर दे हैव मेड अ केस कि सारा करिकुलम जो सोशल सेक्टर स्कूल्स में पढ़ाया जाता है दैट इज जनरली बोरोड फ्रॉम अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। तो सर आपने एक काफी अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं ये जानना चाहूंगी कि सिंस यू रिप्रेजेंट दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, कि इस चीज के तरफ हम किस तरह से पहल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस और बिकॉज ऑफ जो स्ट्रगल्स जो सोशल सेक्टर की एनजीओज ने की है उसके बारे में उनको बताया नहीं जाता। बहुत इजी जॉब्स जो हैं आजकल चूज कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनको इजी लगता है काम करना। एंड जैसे आपने बोला कि कॉर्पोरेट फाउंडेशंस जो है वो आ रही हैं, हमारा जो ऑलरेडी जो सोशल वॉलंटरी सेक्टर का जो कल्चर है वो सारा इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से भी, उनकी प्रेजेंस की वजह से भी। तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस चीज की तरफ हम किस तरह से पहल जो है वो कर सकते हैं। एंड दूसरा सर, जो आपने रिसर्च की बात करी कि आपने 20 एनजीओज जो हैं दिल्ली के अंदर जिसके ऊपर रिसर्च की है, वो अभी वुड लाइक कि वो रिसर्च जो है लार्जर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्कुलेट की जाए। आपने बहुत अहम चीजें रेज करी हैं कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अभी भी जो है एनजीओज को कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ता है, जबकि इट इज नॉट रेलेवेंट टू आवर सेक्टर। सो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, अभी मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा हमें अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत है, और जैसे यूनिवर्सिटीज को अपने परिवेश से बाहर आने की जरूरत है। हम दोनों को अपने अपने जो हमने कोठरी बना रखी है, जो हमने अपना एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, उससे बाहर आना चाहिए। जैसे हम, अगर आपको किसी विश्वविद्यालय का सिलेबस आपके हाथ में आ जाए तो कोई बुराई नहीं है कि उसको 2 लाइन लिख के आप उस पर भेजें कि इसमें ये भी और जोड़ देना चाहिए, या ये हटा देना चाहिए, या इसको जोड़ने से हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपको इसमें कोई जरूरत हो तो हम आपके लिए तैयार हैं। मुझे लगता है ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं है, हम ऐसा नहीं करते हैं। उसी तरह से जो बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, उनको आगे बढ़ के पूछना चाहिए कि आपके साथ हम किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो एक नई पहल करने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं हम इस पूरी आपाधापी में सिकुड़ गए हैं अपने अपने दायरों में। उस दायरे को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। मैंने जो रिसर्च का जिक्र किया वो सोशल सिक्योरिटी फॉर एनजीओ वर्कर्स के ऊपर एक रिसर्च की थी। तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो अपने वर्कर को सोशल सिक्योरिटी नहीं देते। अब वो दे कहां से, क्योंकि हमारा तो पूरा एनजीओ सेक्टर प्रोजेक्ट बेस्ड हो गया, और प्रोजेक्ट बेस्ड हो गया तो हमारे पास फंडिंग की प्रॉब्लम आ गई। वो एक विशियस साइकिल है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे एनजीओ जो छोटे हैं, जिनके पास 3 या 4 वर्कर का स्टाफ है, वो चाहते हुए भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसे संभव होगा, इसको कैसे रिवाइटलाइज किया जाना चाहिए, मुझे लगता है इस पर लगातार चर्चा की जरूरत है। और अगर आप किसी विश्वविद्यालय को लिखते हैं तो आपको लिखने का पूरा अधिकार है, क्योंकि विश्वविद्यालय आपके ही पैसे से बने हैं ना, पब्लिक फंड से आ रहे हैं। तो आप उनके ऊपर प्रश्न भी उठा सकते हैं, और वो प्रश्न उठाए जाने चाहिए। तो वो जो हम अपने दायरे में सीमित हैं, उसमें हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। वो क्वेश्चन रेज करने का वक्त आ गया है। अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर जो दूसरे लोग हैं वो उठाएंगे सवाल, और वो हमारे ऊपर उठाएंगे। जी, हेमल कामत जी, आप पूछ लें। थैंक यू सो मच संजय भट्ट जी। बहुत आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने नेगेटिव, पॉजिटिव
और मुझे लगता है जितना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उसके फ्यूचर प्लान्स के लिए आपने बात की। बट 2-3 चीजें जो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जरूर इसको इंडोर्स करना चाहिए कि एनजीओ सेक्टर का अगर हम बात करें, वॉलंटरी सेक्टर की बात करें, तो 75 साल में हमने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर के लोगों को उनके प्लस और माइनस सभी चीजों को करते हुए देखा है ना। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें या हम किसी और भी सेक्टर की बात करें तो सभी में प्लस और माइनस है। सेम चीज है वॉलंटरी सेक्टर में भी प्लस और माइनस है। कहीं ना कहीं शोकेसिंग में हमारा सेक्टर जो है वॉलंटरी सेक्टर वो थोड़ा सा पीछे रहा। पर अगर अचीवमेंट की बात देखें, थोड़ा सा अगर हम करिकुलम में इस चीजों को इनकॉर्पोरेट करें कि जितना काम इस सेक्टर के कारण अचीवमेंट आया है, अगर हम उन बच्चों को, आने वाली जनरेशन को बताएंगे तो शायद उनका इंटरेस्ट इस सेक्टर में आने के लिए होगा। अभी जैसे मैं खुद भी कुछ सोशल वर्क के कॉलेजेस में सेशंस लेती हूँ, एक या दो सेशन जरूरी होते हैं किसी एक्ट को लेकर के, किसी नई पॉलिसी को लेकर के। तो वहां पर बच्चों में, जैसा जसवंत ने कहा, सेम यही चीज मुझे भी लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें जाकर के ग्रास रूट में काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इंटरेस्ट है या तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने में या फिर जो गवर्नमेंट की जितने भी अभी जैसे संविदा नियुक्ति होती है ना, एक प्रोजेक्ट आया है, NRLM आया है, NULM आया है, तो उनको उसी चीजों में जाकर के काम करने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम यूनिवर्सिटीज को ये सजेशन भी दें कि जितने विजिट, जैसे आपने दिल्ली बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है या मेगा सिटी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हाईलाइट हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे होते हुए भी, जैसा आपने भी कहा कि 3 या 4 या 5 वर्कर्स के साथ में अगर वो इतना अचीवमेंट लेके आते हैं तो विजिट आपकी उस यूनिवर्सिटी को कहना चाहिए कि उन बच्चों को आप अपने करिकुलम में कंपलसरी करें कि उस एरियाज में, रिमोट एरियाज में जा करके विजिट करें, ना कि हम भी कॉर्पोरेट की तरह आसपास के एरिया में ही जाकर के विजिट करें जो कि नोन एरिया होता है। तो वहीं से उनकी शुरुआत होगी, वो जज्बा स्टार्ट होगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं ना 75वां जो अमृत महोत्सव है, घर घर तिरंगा के लिए पूरा देश इतना बाहर आया है, तो ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं से ऊपर से लीडर्स से मिलता है या उनके एकेडमिक्स जो है उनकी तरफ से मिलता है। सेम मोटिवेशन हमें बच्चों को ऊपर से ही डिलीवर करना होगा कि सोशल वर्क भी एक जज्बा था पहले, आज भी है और आगे भी रहेगा, और उसी से हम देश में कुछ चेंज ला सकते हैं। तो इसमें आप लोगों जैसे जो एकेडमिक्स हैं हमारे साथ में, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वाणी के साथ मिल करके अगर हम ऐसा कोई करिकुलम में एडिशन करें तो डेफिनेटली हमारे सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर सकते हैं, अपना इनपुट दे सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल आपने भी बताए। थैंक यू। जी बिल्कुल। बस मैं चलते चलते आपको एक बात बता दूं कि हमारी दिक्कत क्या है कि लोग हमें गांव के पंडित जी की तरह देखते हैं, वो ये नहीं मानते कि हम भी इंसान हैं। मतलब एक वॉलंटरी सेक्टर के वर्कर से का जो इमेज है, उससे जो उम्मीदें हैं समाज को, उससे जो हम एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, वो बहुत आइडियलिस्ट है। जैसे गांव के पंडित जी से अपन लेके चलते हैं ना, जी जी, उसी तरह की हमारे से एक्सपेक्टेशन है, सरकार को भी, राजनेताओं को भी, और हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी। वो सब हमसे आइडियल चीजों की उम्मीद करते हैं, हमारे से कोई गलती की उम्मीद नहीं करते। तो जैसी कोई गलती होती है किसी भी एनजीओ से जाने या अनजाने में, तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। लेकिन हमारी दिक्कतें कोई नहीं समझ रहा है, ना हमारी समझने की, ना हम समझा पा रहे हैं उन्हें। अभी जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में फंडिंग का साइकिल बताया, विशियस सर्किल ऑफ फंड रिलीज का, वो कितना इंपॉर्टेंट इशू है और क्यों नहीं सॉल्व किया जा सकता आज की तारीख में, जब डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी और डीबीटी का जमाना है। तो जब आप किसी सेक्रेटरी से या किसी अधिकारी से बात कीजिए ना, तो उसका जो स्टेटमेंट होता है कि एनजीओ वाले कौन हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और किस तरह के हमारे लिए कई बार अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो वो मुझे लगता है कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि समाज की हमसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, और कहीं ना कहीं पे हमको बहुत आइडियलिस्टिकली आजकल आज भी देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपनी सीमा रेखा से बाहर आके लोगों को ये नहीं बताएंगे,
जैसे मैंने एक बार किसी टीवी के प्रोग्राम में बोला कि आपके पास सारे समाचार बुरे ही क्यों होते हैं, कि इतने मर गए, पुल टूट गया, वहां ये हो गया, करप्शन में ये चला गया, आपके उसमें कोई अच्छा समाचार क्यों नहीं होता? तो वो न्यूज एडिटर ने मुझसे कहा, सर अच्छे समाचार हैं कहाँ? तो मैंने कहा आइए ना, हमारे सेक्टर में बहुत सारे अच्छे समाचार हैं, देयर आर गुड न्यूज ऑल्सो, लेकिन हम गुड न्यूज नहीं सुनना चाहते ना, बैड न्यूज ही सुनना चाहते हैं। पूरा न्यूज का फ्रेमवर्क ही निगेटिव है, अच्छी खबरें आती ही नहीं है। अगर आप सुने कभी न्यूज को तो वो बड़े उससे बताते हैं लास्ट में, और आपके लिए एक समाचार बताना चाहते हैं कि एक 10 साल के लड़के ने अपनी जो है ना गुल्लक दान दे दी, तो उनके लिए वो गुड न्यूज होती है। आप जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए गुड न्यूज नहीं है। तो शायद ये हमें कहीं ना कहीं गुड न्यूज बनाना पड़ेगा। जी सर, दो और लोगों के हैंड्स रेज्ड हैं। आई रिक्वेस्ट मिस्टर कुलदीप फर्स्ट, फिर उसके बाद रमेश सरन जी पूछ। मिस्टर कुलदीप, आप सर से कुछ बात करना चाहेंगे? हेलो मिस्टर कुलदीप, आप अनम्यूट हो जाएं और सर से कुछ पूछना चाहें, आपका हाथ रेज्ड है। जी हेलो जी, आपका हाथ हाँ, रेज्ड है। आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, मैंने हाथ रेज जी किया आ था। रही है, सर से बात कर लें। पूछ लीजिए अपना सवाल। Actually कुछ हाँ जी, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि काफी एनजीओ की स्टेट लेवल की या लोकल लेवल की काफी समस्याएं हैं, ठीक है ना? उसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स है एनजीओ की, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है ना? मान लीजिए पंजाब में है, पंजाब वाले लोग एट ज्वाइनिंग हिमाचल में काम नहीं कर सकते, हिमाचल वाले लोग पंजाब में काम नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जो एनजीओ लेवल की कमेटीज बनती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे, उस पे कौन सी एनजीओ शामिल हो कौन सी नहीं हो, इसका कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि वहां पे सारी बोगस जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए पहले बात हो रही थी, कोई ट्रस्ट वाला मान लो हॉस्पिटल चलाता है, उसको वो शामिल कर लेते हैं उस कमेटी में, तो जो डिसीजन लेते हैं वो उस कमेटी में डिस्कस होता है, वो सारा उस लेवल का होता है। तो जो रियल एनजीओ सिविल लेवल पे काम करने वाली होती हैं, उनका तो इश्यूज ही नहीं आते उन मीटिंग्स में। ये देखिए, स्थानीय लेवल की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी स्थानीय है। लोकल लेवल की प्रॉब्लम अगर कोई ग्रुप ऑफ एनजीओ फेस कर रहा है कि आप ऊपर से सॉल्व नहीं कर सकते, उसे वहीं सॉल्व करना होगा। मेरे ख्याल से वानी के और तमाम सारी संस्थाओं में इस पे आप लोगों ने बहुत चर्चा की है, तो इसलिए मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा अपना सशक्तिकरण है वो बहुत जरूरी है, तभी अपन लोग लोकल फेस कर पाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और CWC में एक सोशल वर्कर के अपॉइंटमेंट की प्रोविजन है। तो बहुत सारे जिले में वो अपॉइंटमेंट कैसे हो रहे हैं और कैसे होते हैं वो आपको पता है। तो अब अगर उसको चैलेंज करना है तो सरकार को चैलेंज करना है, और अगर उसकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो मेरा ये मानना है कि लोकल लेवल की समस्याओं का समाधान लोकल लेवल पे हो सकता है। हेलो, ठीक है, सर ने आपके डाउट्स का जवाब दे दिया। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर रमेश सरन जी से। ठीक है, मैं तो यही कहने वाला था, मैं तो खुद CWC में रहा हूँ, अभी JJB का भी मेंबर हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, मैं तो हूँ, लेकिन कुछ बहुत से एनजीओ है जो बेचारे नहीं पहुंच पाते, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिस्टर रमेश सरन जी, आप सर से डिस्कस कर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर का, जिस तरीके का बहुत डिटेल्ड एक बार और पूरे डेवलपमेंट सेक्टर को उन्होंने जिस तरीके से समझाया। वानी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके के ये सेशन ऑर्गेनाइज किया। बट मेरा सवाल संजय सर जो हैं
क्योंकि हम सेकंड जनरेशन के साथी हैं जिन्होंने आप सब लोगों को काम करते हुए देखा है, क्योंकि हम लोग चाहे संजय घोष की बात करें, उनके साथ हम लोगों ने काम किया, अरविंद जी के साथ हम लोगों ने उनको काम किया। हम लोग पढ़ते थे तब, जो आप जो बात कर रहे थे जेपी मूवमेंट वगैरह, ये सब कुछ पढ़ते थे। बट एक एक चीज जो मैं बड़े तौर पे अगर इस 75 साल में जो बदलाव इस पूरे सेक्टर में देखा, और उस पर मैं चाहूंगा कि क्यों मतलब इस तरीके का, अगर हम 2000 तक देखें तो ये पूरा एक्टिविज्म और वॉलंटियरिज्म जो है इसको बोला जाता है सेक्टर को जो है, और इससे मतलब इसको आसानी से पहचान सकते हैं, वानी का जो नाम इनफैक्ट हमारा जो है। बट अगर आप पिछले 15 साल में देखें, इस पूरे सेक्टर का नाम जो है वो सिविल सोसाइटी और एक्टिविज्म से बदल के एनजीओ हो गया जो है, हाँ, जो गवर्नमेंट नहीं है। मतलब हमारा पूरा पहचान ही एक नेगेटिविटी के तौर पे बनता जा रहा था जो है, या बनता जा रहा है। इनफैक्ट सरकार अगर कोविड में देखें, कोई भी अगर नोटिफिकेशन निकालता है तो वो मतलब बोलता है ऑल एनजीओ इनफैक्ट जो है। विच क्या आपको लगता है कि हमारी वॉलंटियरिज्म और एक्टिविज्म का जो फिलॉसफी जो था, हम होते जा रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, क्या हम लोगों ने भी स्वीकार लिया है कि ये एनजीओ या नॉन गवर्नमेंट वर्ल्ड जो है, नेगेटिविटी वर्ल्ड जो है, तो क्या हमारा सेक्टर भी उसको स्वीकार चुका है? क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली अगर देखें, एकेडमिकली अगर देखें, सब जगह पढ़ाया भी वही जाता है। आप जैसे साथियों को पता होगा, इरमा के शुरू के दिनों में देखें तो एक वॉलंटियरिज्म और डेवलपमेंट सेक्टर के तौर पे जाना जाता था इस सेक्टर को जो है। बट अभी तो अगर उन इंस्टीट्यूट में भी देखें तो वो लोग बोलते हैं एनजीओ। हाँ, विच मीन्स तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने तो दोनों तरीके का जो है वो दृश्य देखा है, क्योंकि आप लोग 70-80 के दशक में भी रहे हैं, आज की दशक में भी देखते हैं। तो क्या लगता है कि क्या पूरा सेक्टर मिलकर दोबारा इसको सिविल सोसाइटी या एक्टिविज्म या वॉलंटियरिज्म पे ले जा सकता है? उससे ज्यादा जरूरी रमेश जी ये है कि जिन मूल्यों के लिए हम खड़े थे, उन मूल्यों को फिर से रीजुबिनेट करने की जरूरत है, उनको फिर से रीट्रांसलेट करने की जरूरत है। जैसे अभी आप देखें, अभी तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। आपने जो बात कही है ना कि सरकारी परिपत्रों में और सरकारी आदेशों में एनजीओ शब्द का इस्तेमाल, ये तो अभी शुरुआत है, अभी ये और ज्यादा आगे जाएगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पार्शियली आप एकदम सही हैं कि निगेटिविटी बहुत ज्यादा घर कर रही है, और उसके लिए जो बहुत सारे लोग आतुर हैं आपके सेक्टर में आने के लिए, जिनको नहीं आना चाहिए था। जैसे मैंने आपको कॉर्पोरेट फाउंडेशन की बात की है कि कॉर्पोरेट फाउंडेशन जिस तरह से वॉलंटरी सेक्टर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी इस सब के लिए इस तरह की जो चर्चाएं हैं, जो आज चर्चा शुरू की है वानी ने, ये चर्चा हर स्तर पे होनी चाहिए। और जब ये हर स्तर पे होगी तो लोगों को ये बात समझ में आएगी कि ये जो सेक्टर है वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। और ये लोगों की जिंदगी में, जैसे कोरोना में हमने बहुत अच्छा काम किया पूरे सेक्टर ने, लेकिन आप मुझे बताइए कि कितने डॉक्यूमेंटेशन ऐसे हैं जिनको मैं ले जाके क्लास में पढ़ा सकूं। मतलब लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन उन कामों को, हो सकता है कि जो लोग काम कर रहे थे वो उतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन ना कर सके, ना कर पाए हों, लेकिन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो उनके आसपास हैं वही ये काम संभाल लेते। तो मुझे लगता है कि अभी काम को शोकेस करने का जो टाइम है वो भी बहुत जरूरी है। जो पहले वॉलंटियरिज्म में होता था ना कि हमारा काम काम करना है, दिखाना नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि काम भी करना है और दिखाना भी है। क्योंकि जब तक आप एविडेंस नहीं रखेंगे तो तब तक आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। क्योंकि आजकल जमाना पीपीटी का हो गया है। मेरे पॉइंट चाहे जितने पावरफुल हो, लेकिन वो जब तक अच्छे नहीं माने जाते जब तक मैं पीपीटी में न डालूं। तो मेरा ये मानना है कि अभी ये जो बदलती हुई जरूरतें हैं ना, और जो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, और उससे जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, वो आप देखिए जो सोशल मीडिया आया है ना, उसमें लोगों की, आप कभी एनालिटिक्स में जाके देखिए, पढ़ने और सुनने का समय बहुत घट गया है। इसलिए आपने देखा होगा एक एक मिनट के जो है ना कैप्सूल बनने लगे हैं। मैं अगर 10 मिनट का लेक्चर देता हूं तो लोगों के पास टाइम नहीं है उसको 10 मिनट सुनने का, वो तो 1 मिनट में कितनी जल्दी आप बता सकते हैं। तो अभी जो ये बदलाव है उसमें बहुत लोग जल्दी में हैं, धैर्य की कमी है, लोग सुनने को आतुर नहीं है, मतलब उनके पास समय ही नहीं है। तो हमें इन बदलावों को महसूस करना चाहिए और इनको स्वीकार भी करना चाहिए कि बदलाव आ रहा है, और उस बदलाव के साथ हमको थोड़ा सा अपने आप को भी बदलने की जरूरत है।
करेक्ट। जहां तक सवाल है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में नॉन शब्द लगा है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे उतनी ज्यादा निगेटिविटी आ रही है। निगेटिविटी इस बात से ज्यादा आ रही है कि हमारी इंटीग्रिटी पे, हमारी हमारी पूरी साख पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। और कुछ लोग जानबूझ के लगा रहे हैं क्योंकि उससे उनका मकसद हल होता है, और कुछ लोग अनजाने में लगा रहे हैं कि उनको हमारे बारे में मालूम नहीं। तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन इज द टूल, और वो इंफॉर्मेशन को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाना चाहिए। जैसे ये प्रयास शुरू हुआ है, इसी तरह के और भी प्रयास अपने अपने स्तर पे करना चाहिए। वैसे मैं आपकी कई चीजों से एग्री करता हूँ, और किसी जमाने में उर्दू में मैं काम करने के लिए आया था अरविंद जी के टाइम पे। उस समय पे जब तो मैं अपने विद्यार्थियों को भी लेके आता था। कुछ विद्यार्थी हमारे वहाँ 3-3, 4-4 साल तक रुके, उन्होंने काम भी किया। लेकिन अब आजकल तो ये हो गया है ना कि जितनी जल्दी ग्रास रूट में जाएं और जितनी जल्दी सीख के फिर किसी कॉर्पोरेट में चले जाएं, तो ये जो प्रचलन है, अब इसको रोकना है या इसको बदलना है, इन दोनों में अंतर है। शायद हम रोके ना, हम इस मानसिकता को बदलें, उसकी जरूरत है। राइट राइट, थैंक यू सर। Thank you so much. Harshji, may I request you for the concluding remarks, please? Thank you, Shaveen ji. I know it's lunch time. I should not be between everyone and the lunch, but definitely मैं कुछ points जो संजय जी ने कहे बहुत जरूरी point के, I think they all need some sort of follow up from all of us. क्योंकि जो चर्चा का विषय ये था कि जो 75th year जो मना रहे हैं देश की आजादी का, actually it's a celebration and also it's again the reiterating and remembering that lot of work is yet to be done in this country to realize the vision and the dreams of the founders of the nation. तो इसके इसी हिसाब से ये हमने चर्चा रखी है, और ना कि हम ग्लोरिफिकेशन करें बैठ के कि हमने इतना महान काम किया, इतने बड़े बड़े काम किए, बल्कि हम एक रिफ्लेक्शन भी करें कि आगे हमको कैसे सुधार करना है। और जैसे साथियों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, सुधांशु जी ने भी सवाल पूछा। हुआ ये है कि कुछ वर्षों में, पिछले करीब 2 दशकों में ऐसा देखने को आया कि हमारे जो, जैसे संजय जी कह रहे थे वोकेबलरी, मैं कह रहा हूँ वोकेबलरी, टर्मिनोलॉजी और भाषा भी बदल गई हमारे सेक्टर की। जो भाषा हमने अपनाई, वो ये भाषा अपनाई कि जो फुलफिल करती है रिक्वायरमेंट हमारे कॉम्प्लायंस की, हमारे डोनर्स की। इस चक्कर में लोगों को नहीं पता कि हम करते क्या है, तो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी उसमें, उससे संपर्क टूट गया, उससे बातचीत टूट गई, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या नॉलेज क्रिएशन हो रही है। और दूसरी तरफ क्या है कि कॉर्पोरेट सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव, लुक्रेटिव जॉब लगती है, तो उसमें बच्चे, क्योंकि वो सोशल सेक्टर को जैसे ज्यादा बाकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी एडवर्टाइजमेंट होती है, तो उनको लगता है वहां जाना अच्छा है, और हमारे यहाँ उतना उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। लीडरशिप का ले लीजिए कि जो डॉक्यूमेंटेशन है लीडरशिप के बारे में, मोटिवेशनल लीडरशिप जिसको आप कहें, उसका भी कुछ है नहीं हमारे पास जो हम कह सकें, बच्चों को दिखा सकें कि भैया जैसे अब जेपी की बात होती है, हमेशा हम जेपी की बात कब तक करेंगे, और तो कोई है ही नहीं उसके बाद पूरे सेक्टर में। और जेपी भी हमारे सेक्टर के नहीं थे, देखा जाए तो ही वाज अ पॉलिटिशियन। तो एक ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। दूसरा, यस, जो सर पोजीशनिंग है ना हमारे सेक्टर की, ये हम लोगों ने कुछ ऐसी कर ली है कि वी हैव बिकम एडवर्सरी टू एवरीवन, रेदर इट्स समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अभी हम जो सरकार से बात करते हैं 1-to-1 बेसिस पे तो बहुत अच्छी बात होती है कि हाँ कोलैबोरेशन है, बिकॉज दे आल्सो अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट के कैसे हम मिलजुल के काम करेंगे। 1-to-1 बेसिस पे कमेटीज बनती हैं, कन्वर्सेशंस होते हैं, फीडबैक जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन कलेक्टिव में जब बात होने लगती है तो कुछ वो ऐसी इमेज हो जाती है कि ये तो भैया एडवाइजरी वाले, इनको तो मीटिंग में ही मत बुलाओ, इनको तो इनसे तो बात ही मत करो। तो ये एक बड़ी चीज है। तो डायलॉग जो होना चाहिए बिटवीन द सेक्टर एज सच, वो बहुत कम हो गया है। बट इट्स आई थिंक, और जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल फंडिंग डेफिनेटली, क्योंकि अब आप देखिए संजय जी, जो इतिहास ये कहता है कि व्हेन द सेक्टर वाज देयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट डोनर ऑफ द होल वॉलंटरी सेक्टर एट दैट टाइम। एंड in fact, Indian government was the first government in the world who provided lot of support to the voluntary sector. It was only the introduction of foreign funding जिसने आके एक तरीके से ऐसा कर दिया कि अब लगता है कि जैसे उसके बगैर हम रह नहीं सकते। और उस सोच का फायदा सरकार भी उठाती है कि जब होता है तब मरोड़ के एफसीआर है, आपको डरा दिया जाता है, आपको चुप करा दिया जाता है, और इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना दिया, किसी ने तब भी नहीं बोला। फेमा जो है, इट्स नॉट अ
part of Home Ministry, but FCRA is part of Home Ministry. So I think these are so many issues. Definitely we need, even to put our argument, even to discuss our case, we need support from academic institutions to, conceptualize our issue with lot of evidence and research work. That is one part. And the second part, as Jaswant ji was saying, कि जो curriculum है universities का, उसमें भी space, क्योंकि धीरे धीरे अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, हमारा documentation और research नहीं होगी, तो we will be missing the bus. And जैसे कई colleges में जैसे वानी की case study पढ़ाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो हट जाएगी वहां से. That is, I think, we have to rejuvenate our relationship in the coming years. So thank you, Sanjay ji. That's your very kind of you of showing us the mirror and also motivating everyone. In fact, I would say that. Thank you, sir. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you everyone. अब every month हम एक इस तरह का motivating lecture रखेंगे. Do join us and encourage us in bringing fresh blood into this And sector. जी सर. नहीं, और एक मैं चीज लास्ट में कहना चाहूंगा कि ये जो हमने सीरीज शुरू की है, जैसे शुरू में कहा था, it is not about, we are not going to invite people who are part of the sector. कि हम आपस में नहीं अपने को कन्विंस करते रहो, बिठा के एक ही बात करते रहो. We want in this series people from outside the sector who come and talk about the sector. So please suggest the names कि हम किनको बुलाएं जिनके साथ आप काम करते हैं, जो कि जैसे जर्नलिस्ट हो गए, इवन डोनर्स भी हो गए, CSR वाले हो गए. आप ऐसे नाम बताइए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, जिनको कि इसमें हम लोग, और ये क्योंकि वेबिनार मोड पे हो रहा है, तो इसको आप भी होस्ट कर सकते हैं, को होस्ट कर सकते हैं. Everyone can do that. Thank you. Thank you everyone. Thank you. So thank you. Bye bye.